So, good morning, students. Uh, we are beginning with the first chapter of your value education, the title of which is Four Daughters. Now, since this is a story, you can also help me reading this out. Would anybody like to read this chapter for me? कोई read करेगा chapter मेरे लिए? Chapter is Four Daughters. Anybody है कि मैं read करूं? Ma'am, can I read? Yes, sure. Please read. Yes, ma'am. Chapter 1, Four Daughters. A rich merchant had four daughters. He was very proud of them. He considered himself richer because of them. He had special feelings for his eldest daughter as she was the most beautiful amongst them. He decked her up with the best clothes and treated her to gracefulness. He took great care of her and always gave her the best. The eldest daughter was aware of her father's treatment towards her, and so she was very conscious about it. Okay, The thank you, merchant. beta. अभी पहले let me explain this first chapter. ये first paragraph. A rich Okay, merchant. ma'am. Merchant means a rich merchant had four daughters. Merchant means businessman. एक Yes, businessman ma'am. था. He had four daughters and he was very proud of them. और वो अपने आप को उनकी वजह से और अमीर समझता था कि मेरी बेटियां ही मेरी दौलत हैं. लेकिन सबसे बड़ी डॉटर जो थी उसके लिए उसकी स्पेशल फीलिंग थी. होता है ऐसे फैमिली में पेरेंट्स के कई बार एक लाडला भाई बहन बच्चा कोई होता है तो उनकी इस फादर की फेवरेट वाज द एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी वाली जो सबसे सुंदर भी थी. वो उसके लिए हमेशा बेस्ट क्लोथ्स लाता था, उसको हमेशा बहुत सुंदर ग्रेसफुली उसकी केयर करता था, उसको रखता था, उसको हमेशा बेस्ट चीज देता था. और डॉटर को भी पता था कि फादर उसके बारे में क्या सोचता है, तो वो हमेशा कॉन्शियस रहती थी इस बात के लिए. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. Yes, ma'am. The merchant loved his second daughter also very much. He was very proud of her wisdom and always wanted to show off her to his friends. This girl was famous for her brilliance far and wide. His friends too appreciated her for her intelligence. She remained busy studying various subjects and her father made the best arrangements to increase her knowledge. वेरी गुड. The third. अब जो मैं एक एक करके बेटा पैराग्राफ. ओके. Yes, yes. अब जो सेकंड डॉटर थी, नॉइस आ रही है, प्लीज बीच में शोर मत करो, बीच में बच्चों का मैसेज आ रहा है. जो सेकंड डॉटर थी फादर उसको भी बहुत लाइक करता था. फर्स्ट डॉटर सबसे बड़ी वाली तो बहुत सुंदर थी तो उसको प्राउड था. सेकंड डॉटर बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट होने की वजह से उसको उस पर बहुत प्राउड था और उसका शो ऑफ करता था अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉर हर ब्रिलियंस. और वो डॉटर सेकंड डॉटर हमेशा पढ़ती रहती थी वेरियस सब्जेक्ट्स और अपनी नॉलेज गेन करती रहती थी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. द थर्ड डॉटर. The third daughter was also a beloved of her father. Her बिलवड. father, बिलवड बेटा, बिलवड बोलते हैं उसको, बिलवड. yes, ma'am, yes, ma'am. A beloved of her father, he loved her too. She was a very considerate person. She had lots of patience and perseverance. In परसिवियरेंस. fact, perseverance. In fact, the merchant had the maximum confidence in her. Whenever the merchant faced any problem, he would always consult his third daughter, who would quickly think of some solution with her cool mind to help him to come out through the difficult situation easily. ओके. नाउ द थर्ड डॉटर जो थी वो बहुत केयरिंग एंड कंसिडरेट पर्सन थी, बहुत शांत, जिसमें बहुत टॉलरेंस थी. और इसीलिए फादर को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर था कि कभी भी उससे कोई प्रॉब्लम आती थी वो हमेशा अपने थर्ड डॉटर को कंसल्ट करता था, क्योंकि वो हमेशा बड़े अपने कूल माइंड से सोच समझ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के फादर को हेल्प करती थी. तो एल्डेस्ट डॉटर की क्या थी क्वालिटी? सबसे बड़ी डॉटर की क्या क्वालिटी थी? Ma'am, she was very beautiful. हाँ, एल्डेस्ट वन वाज वेरी ब्यूटीफुल. सेकंड नंबर डॉटर का क्या था? मैम वो बहुत ब्रिलियंट थी और इंटेलिजेंट. एक्सीलेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट. और थर्ड नंबर डॉटर?
मैम वो बहुत कूल थी. हाँ, cool and patience वाली, very considerate and patience वाली. Good. And now the fourth paragraph. The merchant's fourth daughter was too calm and quiet, but was very loyal to her father. The merchant did not pay any attention to her and looked least care of her. She made great sacrifices, maintained his assets, and to stand his business. She even took great care of the household. She deeply loved her father, but he always neglected her. But she never bothered about that. She was at her utmost sincerity. Yes, जो fourth daughter थी, अपनी तरफ से वो बहुत क्वाइट थी, फादर के लिए बहुत लॉयल थी, उनकी हर चीज का ख्याल रखती थी, अपने सैक्रिफाइस भी करती थी अपने फादर का, ताकि बिजनेस ठीक चले, ज्यादा कोई डिमांड नहीं करनी, घर का सारा काम करती थी, बहुत लव करती थी फादर को. बट ये Yes, फादर ma'am. उसको हमेशा निग्लेक्ट करता था. वो इसको बहुत ज्यादा वैसे प्यार नहीं करता था जैसे बाकी तीन को करता था. इसको लगता बाकी तीन जो है वो तो एक सुंदर है, एक इंटेलिजेंट है, एक बहुत एडवाइसेस अच्छी देती है, लेकिन ये तो सिर्फ घर का काम करती है, तो इसको निग्लेक्ट करता था, जबकि वो फोर्थ डॉटर अपना काम हमेशा सिंसियरली करती थी. नेक्स्ट. The time was passing happily. The daughters were also growing up and were flourishing in their own fields. The merchant grew old in due course of time. टाइम निकलता जा रहा था, डॉटर्स भी हैप्पीली अपना ग्रो कर रही थी, बड़ी हो रही थी अपने अपने जो भी उनकी फील्ड थी लाइन में. और जो मर्चेंट था, बिजनेसमैन, इनका फादर, वो ओल्ड होता जा रहा था, विद टाइम बुढ़ा हो रहा था. आगे. One day he fell ill. The arrangements were made to get the best treatment for him. He was constantly under the observations of the physicians, but still his condition deteriorated considerably. हाँ, गुड. एक दिन बुढ़ा हो गया था तो बीमार हो गया, और बेस्ट ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट हुआ, और ऑब्जर्वेशन था डॉक्टर की, फिजिशियन मींस अ डॉक्टर, लेकिन उसकी कंडीशन डिटेरियोरेटेड कंसिडरेबली, मींस डिटेरियोरेट होना मतलब दिन पर दिन खराब होना, उसकी हालत Yes, लेकिन फिर भी ma'am. दिन पर दिन खराब होती जा रही थी. आगे. He became very sad. He knew नो नो that नो. he हाँ was he हाँ, knew that कंटिन्यू. he was going to die soon. He became very sad at the thought of his own death. He thought that how lonely he would be at his death time. अब वो ऑब्वियसली डेथ, इतना बीमार हो गया था, बेड पर था, बुढ़ा था, बहुत सैड था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो मरने वाला है, और वो अपनी डेथ की थॉट पे बहुत सैड था, और उसे लगा था मैं अपने डेथ टाइम पर कितना अकेला होऊंगा. नेक्स्ट. So he called his first and the eldest daughter, of all whom he considered the best and loved the most. He had always showered great care on her and endowed her with the finest dresses. He put forth his condition before her and asked her whether she would accompany him at the time of death, as he feeling very lonely. She just shrugged her shoulders without speaking anything and walked away. Her reply was like piercing a sharp knife right into the heart of the father. अब जब उसका डेथ टाइम आया, वो जब बेड पर था, तो उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को बुलाया, जो उसकी फेवरेट होती थी, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसको सबसे ज्यादा उसने ड्रेसेस ला कर दी, केयर करी. उसने उसको, अपनी बेटी को, अपनी हालत बताई कि मैं अब मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे को इस टाइम पर कंपनी दोगी, क्योंकि वो लोनली फील कर रहा है और अकेलापन फील कर रहा है, तो मुझे इस टाइम डेथ बेड पर मेरे साथ बैठोगी, कंपनी दोगी. वो शी जस्ट श्रग्ड हर शोल्डर्स, जिसको हम कहते हैं ना, ऐसे बस शोल्डर मार दिया कि नहीं, बोलना कुछ नहीं, और ऐसे हाँ ऐसे करके शोल्डर मार दो, उसने वैसे बस मना कर दिया और वहां से चली गई. तो उसका जो रिप्लाई था, जो तरीका था, वो इतना एक शार्प नाइफ की तरह, मतलब एक छुरी की तरह चुभा उसको, उसके हार्ट के अंदर, फादर के, कि मैंने इस बेटी को Yes, सबसे ma'am. ज्यादा प्यार किया, और डेथ बेड पे जब मुझे जरूरत है, तो ये बेटी मेरे साथ बैठने को भी तैयार नहीं है, एल्डेस्ट डॉटर जो थी. आगे.
The sad merchant then asked the second daughter, for whom he was very proud and considered her the wisest among all. The father expressed his loneliness before the daughter and asked for her accompaniment at the deathbed. But she immediately denied, saying that she had much to do using her intelligent mind and she cannot spend any time for her father. अब जो सेकंड डॉटर थी, जो सबसे इंटेलिजेंट थी, फादर जिस पे प्राउड फील करता था बहुत ज्यादा Yes, कि ma'am. बहुत इंटेलिजेंट, फादर ने जब उसको बताया कि मैं बहुत लोनली हूँ और मुझे कंपनी चाहिए डेथ बेड पे, इस डॉटर ने भी साफ मना कर दिया और उसने बोला मेरे पास अपने इंटेलिजेंट माइंड के लिए और करने के लिए और भी बहुत काम है, तो मैं आई कैन नॉट स्पेंड टाइम विद यू, उसने भी मना कर दिया. देन This reply of his second daughter was so shocking and disappointed for the merchant. ये समझ में आई गया इस रिप्लाई के बाद. ऑब्वियसली द मर्चेंट Yes, वाज ma'am. शॉक्ड, द फादर वाज शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड. नेक्स्ट. Yes. Then, with great expectation, he called his third daughter, who was always being very helpful and a cool minded person. He expressed his desire to seek help at the crucial time of his life. He wanted to know whether she will be able to spare some time for him. She cut a sorry Oh figure and shit. said that she would only able to accompany up to his funeral. The reply came like a bolt of thunder, and the merchant was distressed. ओके, आपने जो सेकंड लास्ट लाइन में बोला ना, that she would only be able to accompany up to his funeral, that is funeral. Yes, What is funeral? ma'am, I don't know. अरे फ्यूनरल जब संस्कार होता है किसी का, उसको फ्यूनरल बोलते हैं. Okay, ma'am. फ्यूनरल ग्राउंड जो संस्कार वाला जहाँ करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूनरल ग्राउंड. तो अब थर्ड डॉटर, जिसको वो सोचता था बहुत कूल माइंडेड पर्सन है कि ये हमेशा मेरे को हर क्रूशियल टाइम पे लाइफ में हेल्प करती रही है Excuse me, हमेशा. ma'am. यस. Ma'am, I think it's called cremation ground. क्रिमेशन ग्राउंड को फ्यूनरल ग्राउंड भी बोलते हैं बेटा, फ्यूनरल संस्कार को बोलते हैं. Okay, ma'am. अगर आपने कभी डेथ की भोग का अगर कोई कार्ड आता है या Yes, मैसेज आता ma'am. है, तो Yes, मैसेज में ma'am. लिखा Yes, होता ma'am. है कि फ्यूनरल विल बी हेल्ड एट इतने बजे, लिखा हुआ होता है उसमें. Yes, ma'am. तो फ्यूनरल इज संस्कार. Yes, ma'am. जो तो थर्ड डॉटर है, वो जब उसको पूछता है तो कि वो अपने लिए जरूर टाइम निकालेगी, ये तो बहुत कंसिडरेट है, केयरिंग है, तो वो भी एक सॉरी फिगर कट कर देना, मतलब अपना एक सॉरी बोल देते कि हाँ जी भाई सॉरी मैं नहीं कर सकती, मैं फ्यूनरल तक तो चली जाऊंगी, लेकिन फ्यूनरल पे चली जाऊंगी मैं, लेकिन अभी नहीं, मैं बैठ के टाइम दे सकती. तो दिस रिप्लाई आल्सो केम लाइक अ बोल्ट ऑफ थंडर, मतलब बिजली का करंट लगता है जैसे, बोल्ट ऑफ थंडर. Yes, ma'am. आयर मर्चेंट वाज डिस्ट्रेस्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया उसके बाद. देन नेक्स्ट, अभी त्रिमनजोत, यू कैन आल्सो रीड. हु एल्स हैज बुक? Yes, ma'am. I can read. इशप्रीत रीड कर रही थी अभी तक? इशप्रीत रीड कर रही थी अभी तक? Who was reading अभी तक? Ma'am, Meherpreet. Meherpreet was reading. Okay, very good reading. Ab Yes, Trimanjot, ma'am. you can continue now. Okay, ma'am. Suddenly, an unexpected voice was heard from some corner of the mansion. Somebody was expressing willingness to spend a lot of time with him. It was none other but merchant's youngest daughter, who was always neglected by him. Her voice became feeble as she was suffering from malnutrition. She had come before her father after such a long time that the merchant could not even recognize her. She was looking so pale and skinny. She expressed her keen desire to spend as much time as was required by her dear father. Very good. अब इसमें कुछ वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगे होंगे. आई एम रीडिंग सेंटेंस बाय सेंटेंस. सडनली एक अनएक्सपेक्टेड वॉइस आती है किसी कोने से ऑफ द मैंशन. मैंशन क्या होता है, सुना है कभी? मैम बंगलो टाइप. हाँ, ह्यूज बंगलोज जो होते हैं इनको मैंशंस बोलते हैं. जैसे शाहरुख खान के घर को मैंशन बोलते हैं, अमिताभ बच्चन के घर को मैंशन बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं. तो एक अनएक्सपेक्टेड वॉइस. अब फादर ने क्योंकि फोर्थ डॉटर को कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसको कभी प्यार ही नहीं किया, तो उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी उससे कि ये कुछ करेगी. तो उसको अनएक्सपेक्टेड वॉइस आई एक कॉर्नर ऑफ द घर से, और उसने अपनी एक विलिंगनेस, मतलब अपनी
इंटरेस्ट, अपने डिजायर शो करी कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूं। और वो मर्चेंट की सबसे छोटी वाली बेटी थी जिसको मर्चेंट ने हमेशा निग्लेक्ट किया था, हमेशा उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उसकी हर वॉइस बिकेम फीबल, फीबल मतलब बहुत धीरे वॉइस को बोलते हैं, धीमी आवाज को। उसकी वॉइस इतनी फीबल थी बिकॉज मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रही थी। मैल न्यूट्रिशन होता है जब आपको खाना पूरा नहीं मिलता, आप कमजोर होते हो। She had come before her father after such a long time that the merchant could not even recognize her. Merchant ने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो इतने टाइम बाद मर्चेंट को मिली कि मर्चेंट उसको पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि वो इतनी पेल, पेल मतलब शी वाज लुकिंग सो पेल। ये पेल मतलब पीली पड़ना, PALE पेल इज पीला पड़ना। एक होता है PAIL पेल, उस पेल का क्या मतलब होता है? सुना है कभी? ये होमोनिम्स में आपने किया होगा। पेल पेल, PALE इज कमजोर दिखना, पीला दिखना। PAIL सुना है कभी? वो नर्सरी टाइम सुनिए कभी? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। सुना है कभी? टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। No, ma'am. ये कभी राइम नहीं सुनी जैक एंड जिल वाली नर्सरी राइम? यस मैम सुनी है। तो उसमें होता तो है जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। तो उसमें पेल PAIL पेल, तो क्या मतलब हुआ उसका? बाल्टी। यस बाल्टी को मैम। पेल बोलते हैं, PIL। तो वो, लेकिन यहाँ पर पेल है PALE, विच मीन्स वो बहुत पीली दिख रही थी। उसने अपना कीन डिजायर दिखाया कि मैं आपके साथ जितना टाइम आपको चाहिए मैं आपके साथ स्पेंड करूंगी। मैम नेक्स्ट, कीन डिजायर क्या होता है? कीन मतलब बहुत ज्यादा इच्छुक होना। जब हम कहते हैं कि आई एम वेरी कीन टू वॉच द न्यू मूवी रिलीज टुडे, मेरा बहुत मन है आज करने का, उसको बोलते हैं कीन डिजायर, मतलब बहुत ज्यादा डिजायर। ओके मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ। The merchant सिमंजू, was ashamed of his behavior towards her. He said that he should have taken maximum care of her. There was repentance in his voice. He asked her to forgive him, but the daughter was calm and quiet and was ready to do anything for an ailing father. मर्चेंट को बहुत शर्म आई कि मैंने अपनी बेटी को इतना इल ट्रीट किया, आज तक इतना निग्लेक्ट किया, मुझे इसकी मैक्सिमम केयर करनी चाहिए थी। देयर वॉज रिपेंटेंस इन हिज वॉइस। रिपेंटेंस वर्ड सुना है कभी? No, ma'am. रिपेंटेंस मीन्स पछतावा होना। रिपेंट करना मतलब पछतावा करना, पछताना। सो देयर वाज रिपेंटेंस इन हिज वॉइस, व्हिच मींस उसको, उसकी आवाज में एक पछतावा था और उसने उसको बोला कि मुझे माफ कर दो। ही आस्क्ड हर टू फॉरगिव हिम, बट द डॉटर वाज काम एंड क्वाइट एंड वाज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर एन एलिंग फादर। एलिंग मींस, एलिंग मींस बीमार। बीमार। हाँ, बीमार। तो फादर ने उसको बहुत सॉरी, पछतावे से, सॉरी बोल, पछतावे के साथ सॉरी बोला कि मैंने कभी सारी उम्र केयर नहीं करी। लेकिन बेटी ने कुछ नहीं बोला आगे से उसको, आगे से शी वाज वेरी क्वाइट और अपने बीमार फादर की केयर करने के लिए शी वाज रेडी टू डू एनीथिंग। अच्छा, विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पेज टुमारो, बिकॉज अभी जूम मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। मैं इसको भी एंड करती हूँ। इफ यू हैव द बुक, एक बार रीड कर लो इसको। अदरवाइज स्टोरी है, आई थिंक इट्स perfectly okay to listen like this also. It's okay with all of you ना, ऐसे स्टोरी सुना रही हूँ मैं तो। This is your value education book में से ही, this is the first story of your value education. And next time Yes, से ma'am. please join in time, क्योंकि आज कुछ बच्चे रह गए हैं who are trying to I think join, but मैंने 15 मिनट वेट किया, उसके बाद मैंने नहीं एडमिट किया किसी को। तो डू ट्राई एंड ज्वाइन इन टाइम। बाकी फ्रेंड्स को भी प्लीज बोल देना। रिकॉर्डिंग मैंने की तो है इसकी, अगर हो गई है तो आई जस्ट शेयर इट ऑन व्हाट्सएप आल्सो विद यू। ओके, Okay, ma'am. Yes, ओके, ma'am. बाय बाय।